موج کشمیری چی آئی وت وت علم کی آگر سری موج کشمیری کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ علم کی آگر سری موج کشمیری یت مسیت سانن سینن مز چھکر فانک دریا جاری موج کشمیری کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کا خلوص بھرا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: تعلیمی امور کے سلسلے میں ڈین اکیڈمک افیئرز پروفیسر محمد اشرف وانی کے ساتھ ہوئی ملاقات کے چند اقتباسات۔ انڈر گریجویٹ امتحانات کے انعقاد پر کنٹرولر برائے امتحانات پروفیسر عبدالسلام بٹ کے ساتھ ملاقات پر ایک نظر۔ سامعین، ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ستمبر 2014 میں آئے سیلاب سے جہاں زندگی کا ہر شعبہ بکھر گیا، وہی تعلیمی نظام پر بھی منفی اثر پڑا۔ یونیورسٹی کا بھی پورا ایکیڈمک کیلنڈر بری طرح متاثر ہوا۔ اس ضمن میں ہم نے یونیورسٹی کے ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر ایم اے وانی کے ساتھ تفصیلی بات کی۔ یونیورسٹی کیمپس کی توسیع، پی جی کورسز کے داخلہ امتحانات اور سال 2015 کے تعلیمی سیشن کے بارے میں ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر محمد اشرف وانی نے تفصیلی جانکاری دی۔ تعلیمی کیلنڈر میں تبدیلی کے بارے میں ڈین کے تاثرات۔ If they were not interested to conduct the exam during this, then and their choice was taken on board, their choice was given preference, and the exams were postponed for winter break. سال 2015 کے ایکیڈمک کیلنڈر کے بارے میں ڈین کا منصوبہ۔ By next year, we will lose 2 months, April and May. We have decided that we will compensate these 2 months again by extending the academic session, just as we extended it this year. We'll extend it, even if we may have to extend it up to February. We will extend it, and in March we'll hold the exams so that the time of the students is not wasted. Otherwise, if we are not concerned about it, if we not take it serious, then at least 6-7 months of the students will be wasted. But we will try to compensate it. If we start the next class of first semester from June to December, we will have 6 months, and 6 months means one full academic session. And in this way, we will try our best not to waste the time of the students. This is what we are planning, and we wish that the climate and other factors also favor us in achieving this very noble purpose. نئے کورسز کو متعارف کرانے پر یونیورسٹی کی حکمت عملی۔ For introducing new disciplines, you need support from UGC, from state government, from other funding agencies, because for that you have to construct a building, you have to have human resource, and in fact the university has been very serious about introducing some disciplines like masters in archaeology, masters in anthropology, masters in philosophy. We have submitted this proposal to the UGC, and we hope that under the leadership of the present Vice Chancellor, these proposals fructify ultimately. And again, it's also very good news that we are introducing a course on nanotechnology, for which we have already got some positions that will be introduced in the main campus. یونیورسٹی میں داخلے کے لیے زیادہ سے زیادہ خواہش مند طالب علموں کو داخلہ دینے پر یونیورسٹی کی پیش رفت کے بارے میں ڈین نے کہا۔ It's a fact that the university in particular and the government and the society in general is facing a serious challenge. In that we have every year a huge number of aspirants for higher education. But unfortunately, we are able to admit only a small percentage. For instance, last year we received 37,000 applications for different courses in the university, but we could accommodate only 3,000 applicants. Kashmir, as you know, is fast moving to 100% literacy, and it's no wonder then that every year you see a significant increase in the number of aspirants. It's a fact that we have responded to this challenge in the context of our own limited capacity. For instance, some off-site campuses have been established. We have South Campus, we have North Campus,
Then we will be having Kupwara campus, and in Kargil and Leh also. And then in the university as such also, we have increased the intake capacity. Now we have in social sciences and languages, we have 85 intake capacity. And accordingly, in science subjects also, intake capacity has been increased. And the government has also established some universities. This is Islamic University, Baba Ghulam Shah Badshah University. We have Central University also. But in spite of all this, the problem still remains. ही मौज कशीरी। सामईन, जैसा कि हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां बुनियादी ढांचे को तबाह किया, वहीं तालीमी अमूर पर भी इसका ज़बरदस्त मनफी असर पड़ा और वादी का तालीमी कैलेंडर यकसर बदल गया। आमतौर पर सितंबर महीने से ही तलबा मुख्तलिफ इम्तहानात की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन हालिया सैलाब से कॉलेजों को होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान की वजह से इन तमाम इम्तहानात को मार्च अप्रैल सेशन में मुनक़िद कराने का फैसला हुआ। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इम्तहानी कैलेंडर को पटरी पर वापस लाने के लिए कई इक़दाम उठाए। इस सिलसिले में हमारी टीम ने कंट्रोलर बराई इम्तहानात प्रोफेसर अब्दुलसलाम भट्ट से तलबा को दरपेश मुख्तलिफ खदशात के बारे में तबादला ख्याल किया। सैलाब की वजह से कॉलेजों को हुए बुनियादी ढांचे के नुकसान की वजह से नवंबर-दिसंबर सेशन में इम्तहानात मुनक़िद कराना नामुमकिन बन गया। ये पूछे जाने पर कि सबसे पहले किन अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात को तरजीह मिलेगी, प्रोफेसर भट्ट ने इस बात का ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि सबसे पहले थर्ड ईयर इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि तमाम इम्तहानात को कम से कम मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए बैक वक्त 2 निशस्तें होंगी। चूँकि आप जानते हैं कि हमारा जो इंटरनस एग्जामिनेशन होता है, मेजर एग्जामिनेशन होता है, अगर इसमें कुछ डिले हो गया तो इससे सारा पीजी सिस्टम तो वो चौपट हो जाता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि पीजी इंटरनस लेट हो। तो पीजी के हवाले से, इंटरनस के हवाले से तो सबसे अवलियन प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि जो पीजी थर्ड ईयर एग्ज़ाम पहले उसी का एग्ज़ाम लिया जाए। तो हमारा ये टारगेट है कि बैक वक्त एक ही एग्जामिनेशन नहीं बल्कि 2-2 सिटिंग्स हम करें, ताकि एक ही दिन में हम थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम कर लें और उसके साथ सेकंड ईयर भी मिलाएं। फिर जब सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो इसके बाद फर्स्ट ईयर भी मिलाएंगे। प्रोफेसर भट्ट ने तलबा को जहन नशीन कराया कि सिंगल पेपर स्कीम के होने से इम्तहानात जल्दी मुकम्मल होंगे। सिंगल पेपर स्कीम जो हमने 2013 में स्टार्ट की, तो 13 में जो बच्चा फर्स्ट ईयर में था तो वो आज सेकंड ईयर में है। लिहाजा फर्स्ट ईयर में भी सिंगल पेपर स्कीम होगी, एक ही पेपर होगा, हर सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। तो सेकंड ईयर के लिए भी यही पैटर्न है कि एक सब्जेक्ट में तो एक ही पेपर होगा। अब जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में सिंगल पेपर स्कीम है नहीं, वहाँ ओल्ड पैटर्न है, हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर है। मसलन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ए पेपर भी होगा तो बी भी होगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में सिंगल पेपर है, ये एग्जामिनेशन कोई 10-12 दिन कंप्लीट किया जा सकता है। सेकंड ईयर में भी सिंगल पेपर स्कीम है और ये एग्जामिनेशन भी 10-12 दिन कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा अगर इन दोनों को हम मिलाएं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये साथ साथ चलेंगे थर्ड ईयर के। और जब जिस वक्त थर्ड ईयर एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा यही टारगेट है कि उसी टाइम फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो और सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो। इस चीज़ के लिए हम आज से ही कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोलर बराई इम्तहानात ने कहा कि इंतज़ामिया फाइनल ईयर इम्तहानात के लिए तैयार है और उनके नताइज का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या हालिया सैलाब से मुतासरा तलबा को किसी किस्म की रियायत दी जाएगी, उन्होंने कहा कि पहले ही इम्तहानी तारीखों को तौसी मिली है, जिसकी वजह से सिलेबस में कोई तखफीफ मुमकिन नहीं। जिस वक्त सैलाब आ गया, क्लासेस चल रही थी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए हमने ये कुर्बानी दी है कि एग्जामिनेशन ही थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ किसी के लिए तो काबिल कबूल है नहीं कि सिलेबस के साथ ही हम खिलवाड़ कर ले। तो पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट किया है, इसीलिए हमने 2 महीने का एक्सटेंड दिया क्लास वर्क में कॉलेज लेवल पर। लिहाजा जो पेपर होगा वो पूरे सिलेबस का पेपर होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, कोई रिलीफ नहीं होगा। प्रोफेसर भट्ट ने मजीद कहा कि जो तलबा इम्तहानात में किसी भी तरह के गैर मुनसिफाना ज़राया का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इम्तहानात में शफाफियत लाने के लिए उठाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में भी बात की। अब उस चीज़ को रोकने के लिए एक तो हमारे जुरिडिक्शन में जो इंस्पेक्शन टीम्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर होती हैं। दूसरे ये कि कॉलेज लेवल पर जो स्टाफ है उनको सेंसिटाइज़ करना, उनसे बात करना, वो भी तो चल रहा है। इसके अलावा
पिछले 2 साल से हम बच्चों को अब सेंसिटाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमने की है कि इस साल जो आंसर बुक आ रहा है, तो आंसर बुक पर भी अब ये डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने लिखी है। तो अगर एक बच्चा पहले ही दिन गाइडलाइंस पढ़ लें तो फिर उम्र भर जो भी वो एग्ज़ाम देगा तो उसी मालूम पड़ लेगा कि अनफेयर मीन्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको करनी नहीं चाहिए। उन गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए तो हमने क्या तरीका निकाला कि एडमिट कार्ड पर भी एक छोटा सा मॉड्यूल हमने रख दिया है। वो वहाँ हमने बच्चे को लिखा है कि डिटेल्स गाइडलाइंस आर गिवन ऑन द आंसर बुक। तो ये एक कंटिन्यूटी हमने मेंटेन की है कि पहले बच्चा डाउनलोड कर ले एडमिट कार्ड, उस पर भी देखे, फिर वहीं से उसको आइडिया मिले कि जो मेरी आंसर बुक आने वाला है जिस पर मैं आंसर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइंस उस पर लिखे हुए हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। प्रोफेसर भट्ट ने तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि वो जवाबी पर्चों पर दी गई हिदायत को जवाब लिखने से पहले बखूबी पढ़ें। फ्रंट पेज पर एक ही जगह रोल नंबर लिखना है, अपनी जगह पर लिखना है, करेक्ट लिखना है, और ज़बानी यादाश्त के सहारे आगे नहीं बढ़ना है। पहले एडमिट कार्ड को देखना है, फिर रोल नंबर लिखिए। दूसरी बात है कि जो चीज़ें अनफेयर मीन्स में हैं, चाहे रिटर्न चिट है, चाहे मोबाइल है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चाहे कॉपी है, चाहे बुक है, ये कैरी करनी नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। इस्तेमाल करना दूर की बात है क्योंकि हमारे रूल्स तो क्लियर हैं, पोजेशन इज इम्पॉर्टेंट। प्रोफेसर भट्ट ने तलबा पर जोर देते हुए कहा कि वो फीस और फॉर्म जमा कराने में कोई देरी न करें और न ही तारीखों में किसी तरह की तवक्को करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए डेडलाइन से आगे जाना मुमकिन नहीं। देखिए, इस वक्त तो जो हमारे मेजर एग्जाम्स हैं 30,000, 40,000, 50,000 स्टूडेंट्स हैं। इधर ऑनलाइन सिस्टम है, IT का ज़माना है। तो अगर हर एग्ज़ाम के लिए खाली हम सबमिशन के लिए 10 दिन देते हैं तो 10 दिन काफ़ी हैं, क्योंकि एक दिन में हज़ारों बच्चे सबमिट कर पाएंगे अपना एग्जामिनेशन फार्म। मैंने ये ख़ास वीकनेस देखी है अपने बच्चों में। एक तबका ऐसा भी है कि लास्ट डेट गुजर गया, टस से मस नहीं, अभी एग्जामिनेशन फार्म सबमिट किया नहीं। जब आपके इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, टाइट शेड्यूल हैं, तो ये मुमकिन है नहीं लास्ट डेट ख़त्म हो गया फिर आप दोबारा एक्सटेंड करेंगे, फिर तीसरी बार एक्सटेंड कर लेंगे। इस चीज़ को हमने रोकना है और इस चीज़ को हम इंशाल्लाह इस साल ज़रूर रोकेंगे। तो प्रोग्राम के हवाले से मैं बच्चों से यही गुजारिश करूंगा, उनके वालिदैन से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर हम सेकेंड ईयर सबमिशन इनवाइट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सबमिशन इनवाइट कर रहे हैं, फिर B.Ed सबमिशन इनवाइट कर लेंगे। वो सबमिशन में एग्जामिनेशन फार्म सबमिट करने में हद से ज़्यादा फुर्ती दिखाए। ही मौज कशीरी। चलते चलते सामईन आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ज़रिए एहतमाम करीबन 32 शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, जिनमें बेसिक कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, कंप्यूटर हार्डवेयर, कटिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग और वीडियोग्राफी काबिल जिक्र है। इस सिलसिले में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। ख्वाहिशमंद तलबा मज़ीद तफसीलात DLL के ऑफिस में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है ताकि तफसीलात हासिल की जा सकें। फ़ोन नंबरात है 0194 241 4481, 9858 423712 और 7298 505589। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। पेशकार मेज़बान तारिक अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ही मौज कशीरी। तो सामईन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? हमें अपनी आरा और तजावीज़ से आगाह करते रहें। हमारा पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट, पब्लिक रिलेशंस सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हज़रत बल, श्रीनगर। पिन नंबर 190006। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं तारिक अब्दुल्ला। ये थी EMMRC यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की पेशकश।